Okay, so we are back again after trying so much. I hope कि इस बार आवाज़ अच्छे से आ जाए. I hope इस बार नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम ना हो. I hope इस बार स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम ना हो, and I hope कि इस बार इंस्टाग्राम का कुछ प्रॉब्लम ना हो. So let's wait till our co-host and audience will join, then we'll begin the session. हेलो, गुड इवनिंग मैम. आवाज़ आ रही है? हेलो. हेलो जी मैम, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ, आवाज आ रही है. स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर आपके स्क्रीन तो नहीं दिख रही है मुझे. ब्लैंक आ रहा है. ओके, वेट अ मिनट. Hello, ma'am. हेलो. Hi. Am I audible, visible properly? एक्चुअली आप लोगों का किसी का भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है. Oh, ओशन, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं. नहीं, किसी की भी नहीं दिख मुझे रही है. सबकी क्लियर दिख रही है, आवाज भी सब बढ़िया आ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. तो ओके. व्हाट शुड वी डू नाउ? फिर से Should मैं we? लिंक करके ज्वाइन करूँ क्या? हाँ, एक बार आप लीव करके ज्वाइन कीजिएगा मैम, एक बार प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो. ओके ओके. हाय ओशन. हाँ, मैं भी एक बार ट्राई करूँ क्या लीव करके? करो करो, एक बार ट्राई करो. वो कहते हैं कि आप जब मंजिल के पास होना है तो आपकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बढ़ने लगती है. तो वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि भाई अब ठीक हो जाए. हाय ओशन. अब कुछ Hi, Sachin. अभी भी आवाज नहीं है, स्क्रीन नहीं है? Yes, both audio and video are there now. अब क्लियर है पक्का? Yes, but let's wait for the author, and I guess let's skip that part, okay? Because author is already here. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट्स बिगिन एंड प्लीज वेलकम आवर गेस्ट फॉर द नाइट, रिंकी मैम. Let's make sure she's in the live, and then we'll begin, okay? ओके, वेट अ मिनट. फाइव फोर Okay, थ्री. great. Hello, ma'am. Once हेलो. again. Finally, the video is there, audio is there. We यस. were having some major issues tonight. मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही. Oh, but कोई but कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स कंटिन्यू. मैम आपको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी जी, मुझे दिख रही है सर. Okay, great. Then let's begin. First of all, a very good evening, everyone. We are back with our final session for the night. You can say grand finale. So please welcome our co-host for the evening, Ocean, and our guest for the session, Rinki ma'am. Welcome both of you. थैंक यू सर. thank you. Okay, let me uh, give a little brief about the series we are having. First of all, good evening, everyone.
and welcome to Saman Publication. This is Ocean, your host. And we are continuing our interview series, 6 books, 6 authors. And it is the big night because it is the finale night of the series. We are about to have this interview session with the finale author itself, Rinki Shukla ma'am. Hello, ma'am. Hi. Hello ma'am. How are you doing? Fine, ma'am. Great. Okay. Okay, ma'am. Allow me to give the introduction to Hello. everyone. Yeah. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Allow me to give your introduction to everyone first. Okay, ma'am. Please. Okay. Sachin, you want to take over? Yeah, sure. So, please welcome our guest for this session, Rinki ma'am. Our guest here tonight is currently working as a Hindi teacher in a school in Bhavani, Patna. She's a writer of Hindi literature whose works bring alive every color of life with her pen. The biggest feature of her writing is that she writes taking inspiration from real life events rather than imagination, due to which her and articles directly touch the heart of the reader. Hi Rinki ma'am, welcome and congratulations for the launch of Khamosh Hello, Awaaz. sir. Thank That you. it will be launching tomorrow. And how are you feeling today? बचपन का सपना था सर, जिसको आप लोगों ने मिल करके यानी हम सब मिल करके पूरा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और एक और सर है विश्वास सर, उन्होंने ही आप लोगों को मतलब रिकमेंड किया था मुझे कि पब्लिकेशन को जानता हूं और आपकी कविताओं को हम चलिए किताब का रूप दे देते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं We are glad और to आप have लोगों you का here. सच में दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इस सपने को सच कर दिखाया। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. And congratulations on the book, first of all. And ma'am, let's begin with your writing journey. Okay. When was it, when you acknowledged the writer, the poet in you? How did that? मैम I'm asking about the writing journey. How did ओके, that begin? Yeah. एक्चुअली मैम बचपन से थोड़ा सा इमेजिनेशन की दुनिया में ज्यादा रहने वाली थी, तो पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं लगता था, बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो बस पीछे बैठ करके जो चीजें जिन चीजों को कोई और नोटिस नहीं करता था उसे मैं नोटिस करती थी। जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ने लिखने में थोड़ा सा उनको पीछे रह जाते थे, टीचर्स भी उनको नोटिस नहीं करते थे, उनके अंदर क्या खूबी है वो हमेशा मेरे दिमाग में आती थी कि अच्छा ये ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमेशा से रही। और धीरे धीरे करके उन सब चीजों को अपने ही इमेजिनेशन, क्योंकि किसी को बोलती थी तो कभी कभी ऐसा शुरू शुरू में लोगों को लगता था ना कि मतलब बेवकूफी क्या बोल रही है, तो उसको थोड़ा सा किसी और को ना बोल करके उसको ऐसे ही लिखना शुरू कर दी, तो धीरे धीरे उसमें रुचि आगे बढ़ने लगी और हिंदी साहित्य से हमेशा से लगाव था। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा को लेकर के लोग बहुत ज्यादा कि हाँ हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो उसी हिसाब से मेरी भी हिंदी भाषा को लेकर के काफी साहित्य को लेकर के बहुत प्रेम रहा है, तो धीरे धीरे करके इस जर्नी में मैं आगे बढ़ती गई। That's great to know, ma'am. और खामोश आवाज की बात करते हैं, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये बुक आपकी फर्स्ट बुक है, राइट? जी, जो पब्लिश होने जा रही है। सो खामोश आवाज की इंस्पिरेशन, पब्लिश करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ऐसा क्या चीज, क्या रहा मोमेंट जी, जब आपको लगा कि हाँ अब पब्लिश करना चाहिए? हाँ एक्चुअली वही लिखते लिखते काफी साल हो गए थे, ऑलमोस्ट 2 डायरी भर गई थी लिखते लिखते, तो जिसमें से चूज करके कि हाँ बेस्ट क्या होता है कि जब हम किसी को सुनाते हैं, और ये चीज मुझे शुरू में तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन जब मैं स्कूल ज्वाइन करी एज अ टीचर, एज अ हिंदी टीचर, तो वहां पर थोड़ा सा और बूस्ट हुआ इस चीज का, और लोगों ने तारीफ करी कि हाँ अच्छा बोलती हैं आप, अच्छा लिखती हैं,
शब्दों का चयन आपका काफी बेहतर है। तो धीरे धीरे करके उन्हीं कविताओं को अगर जब मैंने किसी और को भी सुनाया, जब लोग सुनते हैं और तब तारीफ करते हैं, क्योंकि कभी किसी ने सुना नहीं था, वो एक्चुअली खामोश आवाज ही थी जो मैंने सिर्फ लिखी थी। तो जब लोगों ने सुना, तो जब लोगों से अप्रिशिएशन मिलने लगा, तो धीरे धीरे करके घर में भी हस्बैंड कि हाँ आप इसको करो, और फिर उसके बाद यहाँ पर एज अ कलीग तो नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छे दोस्त विश्वास सर, उन्होंने इंस्पिरेशन दिया कि मैम आप इसको कीजिए, और इतना अच्छा लिखा है, इतना ज्यादा लिखा है, तो आप क्यों ना इसको एक किताब के रूप में हम इसको पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने ही पब्लिकेशन भी जो आपका पब्लिकेशन है, उन्होंने ही हम मुझे रिकमेंड किया, और उसके बाद आज रिजल्ट आप हमारे सामने है। That's great. तो थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले कि आपने समन पब्लिकेशन पर भरोसा किया, हम पर भरोसा किया, रिकमेंडेशन जी के लिए विश्वास का भी बहुत बड़ा थैंक यू। अगर मैं एक कहानी को पलट के देखूं तो मुझे याद आता है कि विश्वास वॉज माय वन ऑफ माय को ऑथर फॉर माय फर्स्ट एवर कंपाइलेशन बुक नेम शरारत, जो आज से लगभग 5 साल पहले मैंने कंपाइल की थी। और उस को ऑथर, उस पर्टिकुलर बुक का वो पार्ट है एज को ऑथर। और उसके बाद से हमारे कांटेक्ट में थे और चीजें आगे बढ़ती गई, एंड उन्होंने देखी जर्नी बाहर से, उन्होंने रिकमेंड करा, तो एक बहुत बड़ा थैंक यू उनके लिए। और मैम खामोश आवाज, शब्दों से बात करें इस टाइटल की, तो कहीं ना कहीं ये सबकी कहानी है। सबकी कहानी इन द जी सेंस कि सबके मन में बहुत सारे थॉट होते हैं, बाहर की जिंदगी में बहुत सारी चीजों से जूझ रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं राइट। एक साइलेंस वॉइस जो है सबके अंदर होती है। तो ये खामोश आवाज का मीनिंग आपकी लाइफ में किस तरीके से है? क्या मीनिंग करता है खामोश आवाज शब्द आपके लिए? खामोश आवाज वही है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया ना, कि कुछ शब्द होते हैं ना जिन्हें आप किसी और से बोल नहीं सकते, उन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, और या फिर अपने तक ही रखना चाहते हैं। खामोश आवाज उसी कल्पना शक्ति का मतलब प्रतीक ही मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने कभी अगर एक दो चीजों को किसी से कहना भी चाहा है, तो मुझे ऐसा लगा है कि शायद मेरा मजाक बनाया जाएगा, तो इसीलिए मैंने हमेशा उसको लिखा है। और जब इस किताब की अगर मैं बात कहूँ खामोश आवाज की, तो सिर्फ दिमाग में एक ही चीज, वो मैंने बहुत ज्यादा इस टाइटल को लेकर के, मतलब इस किताब के शीर्षक को लेकर के ज्यादा संघर्ष नहीं किया गया, वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ गया जब किताब छापने की बात आई थी। तो टाइटल ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में था कि खामोश आवाज करते हैं या फिर खामोशी की आवाज करते हैं। तो लास्ट में फाइनलाइज हुआ कि खामोशी की आवाज इतना बड़ा नहीं, चलो खामोश आवाज ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर, बिकॉज जो आपकी आवाज है वो भले ही खामोश हो, लेकिन हाँ, वो आवाज को कोई खामोश नहीं कर सकता। तो मैम आपने लिखा है जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो खामोश आवाज इंटेंशनली नहीं है, ये बड़ा सोचा समझा टाइटल है, ये बड़ा गहन किया हुआ टाइटल है कि हाँ खामोश आवाज इस पूरी बुक की जो आपकी पोयम है, पूरी जो कलेक्शन है, उसको डिफाइन करने के लिए सबसे बढ़िया शब्द है कि हाँ ये खामोश आवाज है जिसके अंदर इतनी सारी कविताएं छुपी हैं जो बहुत कुछ मीन करती है, राइट? जी जी। ओके। सो रिंकी मैम, जैसे कि आप एक टीचर हैं, राइट? सो आपका जो टीचिंग करियर है और जो राइटिंग प्रैक्टिस है, वो दोनों चीज एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लाइफ में? ये चीज एक्चुअली मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखिए जब हम सिर्फ मैं घर में थी तो उतने लोगों के साथ मेरा जुड़ाव नहीं था, लेकिन जब मैं एक शिक्षक के रूप में आई तो बच्चों के साथ जुड़ाव हुआ, बहुत सारे लोगों से मिला, और लेखनी जो मैं मेरे हिसाब से या मेरे अनुभव के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो लेखनी सिर्फ घर के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आप दुनिया नहीं जानेंगे, आप लोगों से नहीं मिलेंगे, वो जितना ज्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आपके मन में आइडिया आएगा, और उतना ज्यादा आपकी जो लेखनी है वो बूस्ट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं टीचर बनी तब उसके बाद ये जर्नी काफी अच्छी हुई, और क्योंकि घर के जी जी जी। जी
तो एज अ टीचर मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस किया, और लोगों से मिलना, बच्चों क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे के अंदर अलग प्रतिभा होती है, और उन सबको पहचान करके धीरे धीरे जानने की कोशिश, हर एक पर्सन जितने लोगों से मैंने मिला और उन सबको जानने के बाद ये सब चीजें धीरे धीरे करके और भी ज्यादा, जब हम लोगों को जानने लगते हैं, और चार दीवारी में तो हम नहीं जान सकते, फिर वो माँ को, पिता को, जैसे कि मेरी पहले कविताओं में था कि माँ के ऊपर लिख दिया, पिता के, जितने लोगों को, वही मेरा खुद का अनुभव जितनी चीजों में रहा है, मैंने सिर्फ वही कविताओं में सिर्फ वही मिली है। कल्पना करके कुछ चीजों को मैंने लिखा है, बहुत सारी चीजों को अनुभव करके लिखा है। जी, आपने ये अपने बायो में भी लिखा था, और यही है कि अनुभव से ज्यादा लिखा गया है कल्पना के बजाय। रिंकी मैम, आपने ये भी शेयर किया अपने बायो में कि आप पीएचडी जो है परस्यू कर रही हैं, राइट? जी। तो उसमें भी काफी टाइम जाता है, राइटिंग के लिए भी अलग से टाइम चाहिए होता है, और टीचिंग में भी अलग से टाइम चाहिए होता है। सो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये आप कैसे ब्लेंड करते हैं सारा एक साथ? ये एक्चुअली अकेले तो हम भले ही कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये जर्नी अकेले तो बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। तो इसमें मैं फिर से बोलूंगी कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज्यादा सहयोगी हैं। तो उसमें मैं मेरे घर में मेरे हस्बैंड को सबसे पहला बोलूंगी कि उन्होंने बहुत, बिना उनके मतलब सपोर्ट के तो यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। और उसके बाद अगर मैं बोलूंगी तो दोस्त मेरी जिंदगी में काफी अच्छे मिले हैं, जिन्होंने हमेशा हर कदम पे मैं उनको क्या कर रही हूँ वो मैटर नहीं करता, वो हर चीज में सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये चीजें, जैसे स्कूल का आप काम ले लीजिए, कुछ काम एक्स्ट्रा है तो वो लोग बोल देते हैं कि हम कर लेते हैं, आपको अभी जो जरूरी है वो कर लीजिए। घर में भी सेम वैसे ही रहा है, तो सबका सहयोग रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और हो जाता है जब हम ठान लेते हैं ये करना है, और हमारे ऊपर चीजें आ जाती है ना, जैसे भी हम सुनते आए हैं ना बचपन में कि बेटी को खाना मत बनाने मत दो, उसके ऊपर पड़ेगा तो सीख जाएगी। तो वैसे ही होता है, जैसे जैसे चीजें ना आपके ऊपर पड़ने लगती हैं, आप टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, आप चीजें करना शुरू कर देते हैं, तो वही हो रहा है और हो जाता है। सहयोग लेकिन बहुत मायने रखता है लोगों का आपका। तो मैम, जैसा हम जानते हैं, खामोश आवाज बुक की थीम की बात करें तो काफी डाइवर्स है। जो राइटिंग है उसकी, वो उसमें बहुत गहरा कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, जिसमें ब्यूटी ऑफ नेचर है और हमारे जिंदगी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स की बात कह सकते हैं, स्ट्रगल्स की बात कह सकते हैं, जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि इमोशनली और समटाइम हमारे पास लाइफ के बहुत सारे डीपेस्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं सामने कि अब आपको इनके सवालों के जवाब कैसे देने हैं। तो खामोश अल्फाज उन सवालों के जवाब किस तरीके से देता है? वो आपके मायने में खामोश आवाज क्या बताना चाह रहा है उन सवालों के जवाब को लेकर, जिस तरीके से आपकी जो थीम आपने डिफाइन करी है? जी जी, एक्चुअली खामोश आवाज सर, जिस तरीके से आप जो बोल रहे हैं ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे मतलब ना अनुभव रहे हैं, और अगर आप एक इंसान है तो जाहिर सी बात है कि उतार चढ़ाव से भरे, ऐसा नहीं है कि आप एकदम खुशी खुशी में ही सारी चीजें जाएंगी। तो जो खुशियां हैं, जो तकलीफें हैं, वो जैसे जैसे चीजें आप समझते जाते हैं वैसे वैसे मतलब आपको उस बात का एक्सपीरियंस होता जाता है। तो खामोश आवाज उन्हीं एक्सपीरियंस का ही एक दास्तान है। और रही बात नेचर की, तो नेचर से तो सर बहुत ज्यादा प्यार है, और नेचर को मैंने हमेशा नेचर जैसे नहीं, एक इंसान का, आपने मेरी कविताओं को देखा होगा तो एक इंसान के रूप में ही मैंने उनको, जैसे नदियों को, उनको माता के रूप में कभी देखा है, तो कभी किसी जैसे सहेली के रूप में देखा है। तो वो चीजें क्योंकि वो वैसा महसूस कराती हैं, तो वो मेरा अनुभव रहा है, उस तरीके से अपनापन रहा है। तो जैसे माँ की गोद में खेलने से सुकून मिलता है, वैसे जब नदियों में आप डुबकी लगाते हैं, तो जब वहां से डुबकी लगा करके जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको वही सुकून मिलता है। स्पेशली जब आप थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं हिमालय की तरफ, तो और भी नदियों का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों से वही अनुभव ही एक ऐसी चीज है जिसे आप मतलब मैंने उस
खामोश आवाज में, मतलब वो सारी चीजें रखी हैं जिसे मैं किसी को बोलने जाऊंगी कि नदियों को मैंने अपनी बहन बना ली तो लोग हंसेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो शायद मैं उस तरीके से समझा भी नहीं पाऊंगी जिस तरीके से मैंने कविताओं में अपने आप से लिखा है। तो खामोश आवाज वही मेरे इन सभी जो मेरी यात्रा रही है उन सभी यात्राओं का एक पूर्ण संकलन है। मैम ये चीजें साफ आपके शब्दों में दिखता है उन कविताओं में जिसके अंदर एक इमोशनल, एक प्योर बॉन्ड का बताया गया है। वो बॉन्ड है एक माँ, एक पिता और बेटी का। वो बॉन्ड एक माँ के प्यार को लेकर है, वो बॉन्ड एक भाई के सपोर्ट को लेकर है, या फिर जो कह सकते हैं कि हम किस तरीके से हमारे जो गांव है वो हमारी हेल्प करता है। तो ये जो पोयम है, ये जो पोयम आपने लिखी है, ये आपकी पर्सनल मेमोरी से रिलेटेड है या फिर ये फिक्शनल है? मैं दोनों कहूंगी, लेकिन ज्यादातर मेरी अपनी पर्सनल ही जर्नी रही है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने लिखा, अगर मैं अभी सोच रही हूँ आप जैसे बोल रहे हैं ना भाई के प्रेम को, तो वो जो महसूस किया है वही लिखा है। माँ को लेकर के जो महसूस किया है वही लिखा है। पिता के प्रेम को, क्योंकि पिता एक ऐसी चीज है जो बोल नहीं सकते। और एक जो कविता है बड़ी अभी लास्ट मोमेंट पे जब हम बात कर रहे थे तो मैंने जब लिख करके दी थी, और वो जो लड़कों के लिए, हमेशा लड़कियों के वो नारी सशक्तिकरण, लड़कियों को पीछे रखा जा रहा है, लड़कियां दबी जा रही हैं इस तरीके से। लेकिन वो एक अनुभव रहा है कि घर में मेरे भाई, मेरे पिता, मतलब मैंने देखा है लड़के डेवलप नहीं किए हैं। लड़कों का एक ही पोजीशन रहा है शुरू से कि लड़के ही घर का भार उठाने वाले हैं, अगर लड़का कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो नाकारा है। तो वो चीज मैंने देखा है, तो वो अनुभव ही रहा है कि जिसपे ऐसे तुरंत आ जाता है कि हाँ ये लिखने से होगा, और शब्द भी मिल जाते हैं। तो वही चीजें हैं। और ऐसे कल मैं शिक्षा तो नहीं बोलूंगी, अनुभव ही कहूंगी। ओके मैम, आपने अपनी यात्राओं का बहुत बात करी है, उनके बारे में कविताएं लिखी हैं। तो जैसे केदारनाथ और गंगोत्री की यात्राएं आपने करी हैं, तो उन यात्राओं में जो स्पिरिचुअलिटी है वो कैसे कविताओं में ढली, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से और बेहतर बताइएगा थोड़ा, कि वो कैसे क्रिएटिव हुआ। जैसे आपने बताया कि आपने नदी को बहन के रूप में देखा, और तो वो स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिविटी अप्रोच वो कैसे आया? दरअसल माहौल घर का हमेशा से, बचपन से बहुत स्पिरिचुअल रहा है। जैसे मेरा नाम रिंकी शुक्ला है, और आप लोग थोड़ा अगर सुने होंगे तो शुक्ला फैमिली थोड़ा सा, और रहते हैं पंडित। तो मेरे घर में भी मेरे दादाजी पुरोहित, मेरे पिताजी भी इसी क्षेत्र में ही रहे ज्यादातर। फिर उसके बाद उन्होंने नौकरी करी। तो इस तरीके से जो घर का जो माहौल रहा है, मैं अगर कहूँ तो मेरी माँ बहुत ज्यादा धार्मिक महिला है, तो माहौल उसी तरीके से रहा है, स्पिरिचुअल रहा है। दादी अगर पूजा करती थी तो बोलती थी शिव पुराण चलो पढ़ दो, और मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं वो शिव पुराण ये सब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ना वो चीज और मतलब खुद ब खुद हो गई कि भरोसा हो गया कि ईश्वर है, और ईश्वर पिता के रूप में है। तो अगर ईश्वर पिता के रूप में है तो जितने भी देवी देवता हैं हम उन्हें अपना बना सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके ना मन में वैसा ही डेवलप होते गया। और जब जैसे जैसे और मतलब उम्र बढ़ती गई, बुद्धि बढ़ती गई, बुद्धि क्षमता बढ़ती गई, तो धीरे धीरे करके उन सब चीजों में विकास होता गया कि हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर मेरा सहारा कोई, अगर मतलब अगर शिव को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो अगर शिव हर चीज में मतलब बुलाने से, और मुझे ऐसा लगता है कि हम शांति ही ढूंढते हैं ना, अपने अपनों के पास जा करके हमें शांति ही चाहिए। तो अगर मुझे वो शिव के साथ मिल रही है तो फिर वो पिता के जैसे ही मेरे ऊपर है। तो वो धीरे धीरे करके वैसे ही जैसे कि नदियों को, अगर हम जब प्रयागराज मेरा घर है, तो प्रयागराज में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा नदियां एकदम माँ जैसी लगती हैं। लेकिन वही जैसे मैं हिमालय गंगोत्री की तरफ गई तो नदियां इतनी खेलती हुई, हंसती हुई, मतलब बिल्कुल कि बिना किसी रोक टोक के, कोई ठहराव नहीं। तो ऐसा लगा कि वो अच्छा हिमालय मतलब अपने पिता के घर से ही होकर आ रही हैं, तो इसका मतलब है ससुराल नहीं पहुंची हैं, इसीलिए ठहरना नहीं हुआ है।
तो चंचलता लड़कियों में जैसे होती है, तो वैसे वो बहनें हम बोल सकते हैं, सहेलियां बोल सकते हैं, जैसे टीन एज में लड़कियां होती हैं वैसे बोल सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके वैसे ही आता गया। और वही बचपन की सीख कि ईश्वर ही पिता हैं, और उनसे जो भी पूरा करो, जैसे पिता पूरा कर देता है वैसे भगवान पूरा कर देते हैं। धीरे धीरे करके वही सब चीजें आती गई। तो तो मतलब आपने अपनी किताब में नेचर को एक परिवार के रूप में ढाल के प्रेजेंट किया है। जी, और ये बहुत ही अनोखी सी बात है, काफी अच्छे तरीके से और अनोखे तरीके से आपने वो बताया भी है अभी। लेकिन मैम जैसे किताब में कुछ स्ट्रॉन्ग वैसे पार्ट भी हैं जो जैसे कुछ अनकहे ख्वाब होते हैं, उनके बारे में भी आपने लिखा है। और जैसे लड़कियों की जो स्ट्रगल होती है उसके बारे में आपने लिखा है। सो उनको कहना काफी मुश्किल होता है, उनको आवाज देना काफी मुश्किल होता है। तो वो चीज कैसे हुई, आपने उन सारी चीजों को कैसे आवाज दी? उन सब चीजों की अगर मैं बात कहूँ तो वही एक्चुअली शादी जल्दी हो गई थी, तो वो भी अनुभव ही कहूंगी। और उस पड़ाव में कितनी मुश्किलें आई, किस तरीके से ऐसा नहीं होता कि हम, अगर वो तो अपने घर में भी ऐसा होता है कि अगर हम अपने घर में हैं तो 4 लोग अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें एक जन रहेंगे जहां पर उनको लगेगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए, आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगे। तो सेम इस जर्नी में भी हुआ। तो धीरे धीरे करके वो सब चीजें जो, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी, अगर मैं देखूं तो सिर्फ मेरी नहीं है, हमेशा थोड़ा सा रहता है कि अगर आप 2 घर मैनेज कर रही हैं तो आपको थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा मतलब संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं तो आपको हस्बैंड भी देखना है, आपको फैमिली भी देखना है, आपको बच्चे भी देखने हैं, उसके बाद आपको, फिर उसके बाद आपको करियर देखना है। वहां हम अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो वो संघर्ष देखा है। और उस चीज को पार करके मतलब अगर मैं कहूँ तो तिनका तिनका कदम बढ़ाते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। लेकिन लड़कों का ग्रोथ यूं हो जाता है क्योंकि उनको और चीजों को देखना नहीं होता है। तो इसी तरीके से, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे आसपास जितने भी, जैसे कोई सहेली हुई या मेरे और भी कोई दोस्त, तो देखा है मैंने वो सब चीजें। तो इसी से दिमाग में ऐसा आता गया कि मतलब कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं अनकहे, जिन्हें शायद कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो महसूस किया जा सकता है। इंसान, अगर आपके साथ पर्सन है, आप वो देख रहा है कि हाँ इसके अंदर ये पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, या फिर यूं कहूँ कि नहीं, कभी नहीं समझते। तो वही सब चीजें देख करके इस तरीके की कविताएं मन में उभरी, कुछ शब्द ऐसे आए जिनको मैंने पन्नों पर उतारा। बहुत प्यारे शब्दों से मैम आप जो कहते हैं ना कि आप शब्द बहुत ज्यादा कम शब्दों में और बहुत ज्यादा पोटेंशियल के साथ आपके जवाब आ रहे हैं कि अगर हम सुने सिर्फ आपको, और अगर हम पिछले आधे घंटे के अंदर अगर हम लोगों ने इतना ज्यादा उससे इंस्पिरेशन मिल रही है और इतना ज्यादा हमारा माइंडसेट में चेंज आ रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब अपनी बुक बाहर आएगी तब क्या ही समाज में चेंज आने वाला है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप उन चीजों पर थैंक फोकस करिए, उन चीजों के बारे में लिख रही हैं जो हमारे सामने है, पर हम कभी फोकस नहीं कर रहे उन पे, या कहीं ना कहीं हम बोलना चाह रहे हैं पर हम नहीं बोल सकते उन चीजों के बारे में। यू। जी, बहुत सारी चीजें जी। हैं, बहुत सारे पहलू हैं, अगर हम बात करने जाए तो उन्हीं चीजों के बीच में मैम बहुत सारे पॉइंट पर जब हम लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि यार अब हमारा थॉट्स आने बंद हो गए, अब हमारे पास में शब्द खत्म हो गए, अगर हम बात करें अब हमारे पास एनर्जी खत्म हो गई और हमारा दिल कहीं रुक सा गया है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम हम्म। पर आप उस जर्नी को वापस कंटिन्यू करने के लिए किस तरीके से शुरुआत करते हैं? क्या आपका वो पॉइंट होता है कि हाँ अब मैं यहाँ पर, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया है, तो अब मैं यहाँ से कैसे वापस शुरू करूँ? वो अभी तक तो थैंक यू सो मच कि आपने जो बोला कि हाँ शब्द अच्छे लगे, या अगर आप सुन रहे हैं तो आधे घंटे से ज्यादा हो गए। बट मैं आपको सच बताऊं तो अभी इतनी बड़ी मैं हुई नहीं हूँ कि मैं शब्द खत्म हुए और मुझे ऐसे लगे कि अभी यहाँ से फिर से शुरुआत करनी पड़े। अब तक नहीं आया है ऐसा समय, क्योंकि
शब्द और जो शीर्षक मेरे पास बहुत सारे, मैं अभी भी मतलब 15-20 लिख करके रखी हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है उन पर लिखने का। तो अभी वो समय नहीं आया है, तो मैं आपको बेहतर तरीके से नहीं बता पाऊंगी कि मैं शुरुआत कैसे करती हूँ, क्योंकि अभी शायद इतना कुछ लिखा नहीं है, अभी बहुत छोटी सी ही चीज की है मैंने। तो मैं इसका जवाब तो मैं यही दूंगी कि आप लिखते रहिए, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपके अंदर वो चीज है, अगर आपको मतलब लिखने से प्रेम है, किसी चीज से प्रेम होता है तो कम नहीं लगता ना। वो चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, अगर आपको उस चीज से प्रेम है तो उसके अंदर आपको खूबी नजर आती जाएगी, वो कम नहीं पड़ता है। तो वैसे ही लेखनी से मतलब प्रेम है, साहित्य से प्रेम है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ मिलता जाता है। ऐसे मतलब आप ऐसे दीवारों को भी देखते रहेंगे तो भी एक दीवार में एक दरार भी दिख जाती है, तो उसमें भी आ जाता है कि ऐसे मतलब वो फिर दरारों पर एक शीर्षक निकल आता है और उस पर लिखना शुरू हो जाता है। फिर उस वो जुड़ता चला जाता है इंसान से, चीजों से, अम, अ, ये जगहों से। तो धीरे धीरे करके वैसे ही हो जाता है। तो अभी मुझे लगता है कि मैं शायद राइट पर्सन नहीं हूँ ये सवाल करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैम जितना ज्यादा आपसे बात कर रहे हैं उतना ज्यादा ही हम लोग और ज्यादा एनर्जेटिक और इंस्पिरेशन हमें मिल रही है। मैं जानना चाहता हूँ एज अ टीचर आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है जब आपके बच्चे आपकी कहानियों से, आपकी कविताओं से, आपके शब्दों से प्रभावित होते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। जो कि बच्चों की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी उम्र होती है जिसके अंदर वो हमारा खाली दिमाग है, जो हमें चीजें भरी जाएगी हमारे दिमाग में वही हमारा फ्यूचर जी डिसाइड करती है। तो वो किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है, आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा अपने जब बच्चों के साथ आपने अपनी कविताएं शेयर करी? सर, टू बी फ्रैंक, मतलब बच्चों के साथ ही मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं एक किताब पब्लिश कराऊं। ये चीज मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि इससे पहले मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। जब मैं एज अ टीचर, मेरा प्रोफेशन जब टीचर का हुआ, तब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे किताब लिखनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं सबसे पहला बोलूं कि किसी ने तारीफ करी होगी तो वो मेरे बच्चे ही रहे। क्योंकि स्कूल में जब मैं कहानियां, जैसे लोग कहानी सुनाते हैं, अब मैं कुछ कहानी सुना रही हूँ ना, तो बच्चे एकदम शांत, और उसके बाद वो खुद ब खुद बोलेंगे। अगर कुछ बच्चे थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होते हैं, बाहर आकर के बोलेंगे, मैम आपने जो कहानी सुनाई एकदम बहुत अच्छी रही। तो धीरे धीरे करके वो मतलब वो कहानियों का सिलसिला, मतलब छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ स्टोरी सुना सुना करके उनको हम उस टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे करके वही कभी कभी कुछ कविताओं के माध्यम से मैंने उनको समझाया कि इस तरीके से हो सकती हैं। जब कभी, क्योंकि हिंदी साहित्य में पढ़ाती हूँ, तो हिंदी साहित्य में कहानी, कविताएं, यात्राएं, ये सब चीजें होती हैं। तो जब कविताएं मैं उनको समझाती थी, तब भी वो यही कि बहुत मतलब वही उनकी तारीफ और उनका ही अप्रिसिएशन रहा है जो मुझे शायद यहाँ तक लेके आया है। तो एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। मतलब आप अपने कभी बच्चों से मतलब मैंने मुड़ के इंस्पायर नहीं हुए देखा हैं। है कि हाँ। जी बोलिए। ओके मैम। सो जैसे कि मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। अरे तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि एक लेखक है, वो चाहे कल्पना से लिखे या फिर प्रकृति से प्रभावित होकर लिखे या फिर अनुभवों से लिखे, लेकिन उसकी जो लिखने की आवाज होती है वो कहीं मन से आ रही होती है, कहीं दिल दिल से आवाज आ रही होती है वो। लेकिन उस लेखक के क्या चैलेंजेस हैं वो उस आवाज को लाने के लिए, उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए। जी, आपने एकदम सही कहा। जो चाहे जितना भी आप आप सब कुछ अपने अनुभव के हिसाब से आप शब्दों का चयन नहीं कर सकती। डायरेक्ट आप उसी चीज को नहीं लिख सकती जो आपके साथ बीता हुआ है, या आप एकदम रियल आप सब कुछ वैसा नहीं लिख सकती। तो थोड़ा सा चैलेंजेस आता है कि इसको रिप्लेस किस ये शब्द किस दूसरे शब्द से रिप्लेस कर दें जिससे क्लियर ना हो जाए कि ये मैं इसी चीज को लेकर के लिख रही हूँ। तो ये थोड़ा सा होता है। लेकिन
ये है कि हाँ, आप आपके मन की जो बातें हैं वो आप अपना मन हल्का कर सकती हैं लेखन से। तो अगर आपके पास वो चीजें हैं, अगर आपके पास शब्द हैं, तो आप शब्दों को उन रियल शब्दों से, यानी कि जो आपकी सच्चाई है जीवन की, उन शब्दों से आप रिप्लेस करके मन की बात को लिख सकती हैं। तो इतना इतना होता है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ओके, दैट्स ट्रू। और वो उन लेखकों के लिए कुछ बताइए जो लेखक अपनी आवाज ढूंढ रहे हैं और उन्हें अभी पता नहीं है कि हाँ कैसे एक्सप्रेस किया जाए। उनको तो मैं यही बोलूंगी, अगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से ही मैं कहना चाहूंगी कि जरूरत नहीं है आप दूसरों को जा करके आप एक पर्सन ढूंढिए जिसको आप अपनी बातों को कहें। जो पन्ने होते हैं वो शायद हमें बेहतर समझते हैं लोगों से। तो आप उसको अपनी बातों को खुद से भी कहने से, आप अगर खुद को समझते हैं तो आप अपनी बातों को खुद से भी कह करके समझा सकते हैं। और अपने मन को हल्का करने का जो जरिया है वो आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको उस हिसाब से समझे जैसा आप अपने आप को समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर वैसी दबी हुई कोई आवाज है तो उसको डेफिनेटली आप पन्नों पर उतारिए, खुद से पढ़िए, अपनी अपनी खुद की बातों को खुद ही आईने के सामने पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। बेशक। तो मैम आवाज़ मन ये खामोश आवाज की जो कहानी है ये यहाँ पर खत्म होती है और 2 दिन के अंदर ये बुक लॉन्च होती है। खामोश आवाज की बात हो जी। गई, तो क्या हम जान सकते हैं कि आप अभी अपने कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कोई ऐसी कहानी जो आपके माइंड में है कि हाँ मेरा अब अगला टाइटल अगर मैं कुछ लिखूंगी तो उसका टाइटल ये होने वाला है, और अगर वो लिख चल रहा है काम तो वो कहाँ तक पहुंचा है? सर अभी शुरुआत ही किया है, कुछ दिन हुए, और बहुत जल्द अभी मैं इसके बारे में थोड़ा मतलब ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत कम ही शुरुआत हुई है। और कहानियों का ही संग्रह, जिस तरीके से ये कविताओं का एक संग्रह है, वैसे ही कहानियों का संग्रह ही रहेगा। तो शुरुआत हो चुकी है, और अब भगवान शिव चाहेंगे तो बहुत जल्द आप फिर से एक बार इंटरव्यू में आप मुझे बुलाएंगे और एक दूसरी किताब के बारे में चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल मैम। तो आप अपने जो भी एक्सपीरियंस रहा समन पब्लिकेशन के साथ या आपका इस कहानी के साथ खामोश आवाज के एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी और मैंने कभी सच में सोचा नहीं था कि मैं अपनी इन सारी कविताओं का एक संग्रह के रूप में एक किताब पब्लिश कराऊंगी। ऐसा मेरा बिल्कुल कहीं से कोई इरादा नहीं था। और आपका पब्लिकेशन एक माध्यम रहा मेरी इस सफलता का, और मुझे इस सुखद अनुभव का एहसास दिलाने का आपका जो पब्लिकेशन वो माध्यम रहा कि मैं आज यहाँ पर मतलब गेस्ट बन के आई हूँ, और आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। हमेशा मैंने सवाल किया है अपने स्कूल में, अगर कोई गेस्ट आता था, आज मैं गेस्ट हूँ और मुझसे सवाल जवाब किया जा रहा है, और अच्छा लग रहा है। और इस फीलिंग के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से आज ये जो मतलब जीवन की सबसे बड़ी सफलता मैं कहूंगी, क्योंकि ये मेरी खुद की सफलता है। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो It is मच मैम। our honor, ma'am, to have you as our guest tonight. थैंक यू। और मैम मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो आवाज है और आपकी जो बातें हैं, जितनी कोमल तरीके से आप बोलती हैं, लेकिन वो मन में बहुत ही गहरी गूंज करती है, जो भी आपकी बातें हैं और बिलीव्स हैं। और जो खामोश आवाज एक पोएम की कलेक्शन आपने पेश करी है किताब के रूप में, वो उन सभी इमोशंस और मेमोरीज की, उन यादों की और उस खामोशी की ताकत के बारे में सारी जर्नी बताता है, वो किताब बताती है। और थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग योर हार्ट टू अस एंड प्रेजेंटिंग ऑल योर journey and beliefs to us. They are truly beautiful.
एंड Thank you so much. यस मैम एंड और जो जो सब लोग ये लाइव देख रहे हैं, ये इंटरव्यू देख रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ महसूस करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज इस बुक को पढ़िए। और ये वो आईना हो सकता है जो आपको, जिसका आपको इंतजार था। आप काफी चीजें हैं जो जिससे आप रूबरू होंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। और कुछ आप कहना चाहेंगी अपनी किताब के बारे में? जी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस ये जो जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए, इस अनुभव को भी अनुभव करना था, जो कि आप लोगों ने साकार किया। थैंक यू सो मच। और इस किताब के बारे में बस यही कहूंगी कि मैंने बहुत ही सरल हिंदी, स्पष्ट भाषा और एकदम ऐसा सुलभ लिखा है कि कोई भी जो नया पाठक होगा हिंदी का, वो आसानी से समझ सकता है। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं किया है। एक दो कविताएं होंगी जिनको थोड़ा सा जटिल किया है। शायद वही मैंने बोला कि जो संघर्ष एक राइटर करता है कि शब्दों का चयन करते समय थोड़ा सा सोचता है कि हाँ, रियलिटी सामने ना एकदम डायरेक्ट ना बोला जाए, तो बस वही चीज है। और इसीलिए शायद शब्दों का चयन थोड़ा सा कठिन किया। और अदरवाइज जितने भी कविताएं हैं, कोई भी नया पाठक वो आसानी से समझ सकता है। और समझ करके मुझे ऐसा लगता है कि लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, अगर वो पढ़ते हैं तो बिल्कुल पढ़ें। और उनको डेफिनेटली अपने उनके जीवन से सारी कविताएं कनेक्ट करेंगी। जी बेशक, उनके शीर्षक पढ़ के ही दिलचस्पी आती है पढ़ने के लिए। वो इतने प्यारे हैं और खूबसूरत तरीके से चुने गए हैं, तो कविताएं तो और भी खूबसूरत होने वाली हैं। और वी विश यू ऑल द बेस्ट मैम एंड थैंक यू सो मच। congratulations on the book. Thank you so much for choosing Saman Publication. थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for taking out time from your schedule and joining us live today. So, आज का ये जो हमारा सेशन था, ये स्पेशल इस वजह से भी था कि हमारा ग्रैंड फिनाले है, बिकॉज यू आर आवर फाइनल ऑथर। इससे पहले हम सीरीज ऑफ इवेंट्स कर चुके थे, हमने कंपाइलेशन लॉन्च किए, हम लोगों ने सीरीज ऑफ इवेंट्स में मल्टीपल नंबर ऑफ इंटरव्यूज किए, बट दिस वाज द फाइनल, वी कैन से फाइनल डेस्टिनेशन। So good luck for your launch and its success. May you bring many more joys after this one. So congratulations once again. खामोश आवाज कल इसी टाइम, लगभग इस टाइम तक बुक Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगी एज पेपर बैक, एंड गूगल पे बुक एंड किंडल पर अवेलेबल होगी एज ई बुक। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आपकी खामोश अल्फाज की कहानी अब तैयार है लोगों को उनकी कहानी सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you ma'am, and congratulations and have a good night ma'am. Thank you. Thank you. Good night. Good night ma'am. Let's wrap up this session for now. See you soon on the launch event. Thank you so much विश्वास, आपका भी कि आपने वो ट्रस्ट और वो विश्वास हम पर बनाए रखा, और जो हमारा आप कहीं ना कहीं समन पब्लिकेशन को आपने रिप्रेजेंट किया, तो वो जो कहते हैं ना, वो भरोसा हमारे, जो मेरा भरोसा कहीं ना कहीं मेरे ऑथर्स पर था, को ऑथर्स पर था, व्हेन आई वाज द कंपाइलर ऑफ शरारती। पर आज मैं एक पब्लिशिंग वर्ल्ड की बात करूं तो वहां पर मेरा भरोसा आज भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग कमाए हैं, और शुक्रिया आपका मुझ पर भरोसा करने के लिए, समन पब्लिकेशन पर भरोसा करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ओशन टू प्रिपेयर ऑल दोज थिंग्स। एंड मैम, जो आपके बुक का कवर है फाइनलाइजेशन करा है, जो मैन्युस्क्रिप्ट के करेक्शन है, वो सारे के सारे ओशन नहीं किए हैं, तो यूज क्रेडिट टू हर आल्सो। ओके, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सॉरी मैम, एक्चुअली मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो कवर है, कवर की तारीफ मैंने बहुत लोगों से, जब भी मैंने स्टेटस वगैरह लगाया है तो लोग तारीफ किए हैं। और स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे, मतलब 3-4 कलीग बोल चुके हैं, और मेरे खुद के भी, कि जो कवर है वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वही खामोश आवाज जो आपने नाम दिया है, वो कवर पूरा वैसे ही मैच करता है। तो थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा कवर आपने डिजाइन किया। मतलब वो जो मैं बोलना चाहती हूँ, डिजाइन टीम का मेरी जूनियर है, जो मेरी डिजाइन टीम में जो मेरी साथ में मेंबर हैं, उन्होंने ये कवर किया है। मैं सारा फाइनलाइजेशन एंड ऑल देखती हूँ,
So we both worked on the cover, and I guess the credit goes to her Credit goes to more. Kunjal also. And yeah, तो मैं सबको थैंक यू and बोलना it's चाहती हूँ जिन्होंने भी इन really सब चीजों में कंट्रीब्यूट किया। और कवर डेफिनेटली बहुत बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से खामोश आवाज जब लोग सुनते हैं तो बोलते हैं इसमें क्या होगा, ठीक वैसे ही कवर देख करके भी उनको लगता है कि इसमें क्या होगा। तो वो जिज्ञासा बनाए रखा है आपने, तो It's थैंक यू time सो to judge मच। a book by its cover, right? यस। Okay, ma'am. So, thank you so much for joining in this session. Let's wrap up this session for now and see you soon by tomorrow. अब हम launch की तैयारी में लग जाते हैं। So, congratulations on the launch, thank you so much, ma'am, ma'am, and for all the joining very us. best for its success. थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। Okay. Have a good night. Thank you. So, ये थे हमारे ऑथर। It was the grand finale and we are wrapping up this session for now. एक छोटा सा मैसेज टीम की तरफ से कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। ये ग्रैंड फिनाले सिर्फ इस सीजन का था। हम फिर से आएंगे अपनी नई कहानी लेकर, हम फिर से आएंगे अपने पूरी की पूरी टीम को लेकर। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी लगी हुई है। कहते हैं ना कि हर लिखी हुई लाइन एक जज्बा होती है और हर एक किताब दिल का राज होती है। So on this note, we are ending this session and thank you so much to everyone on for trusting Saman Publication. Thank you so much to the team मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए and this is the end of this particular event series of events. Thank you so much मादिया हमारे comment section में है। Thank you so much कुंजल जो हमारे comment section में नहीं है। So and ओशन हमारे फ्रेम में है। So it was a teamwork. It was a teamwork. Thank you so much each and everyone. Thank you so much to the audience. Thank you so much to every author. And we are done for now. Let's move forward for the final destination. Ocean, you want to add anything? You want to add anything? I would like to say thank you so much सचिन सर। आपने सिर्फ टीम को ही नहीं, आपने ऑथर को, हर एक किसी को आपने एक परिवार बना के रखा है और सबने अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया है अपने अलग अलग रोल में, चाहे फिर वो टीम हो या फिर ऑथर हो खुद, और या फिर वो सभी सपोर्ट सिस्टम हो जो कि ऑथर्स को और पब्लिकेशन को यहाँ तक लेकर आया है। और आई होप कि ये जर्नी कंटिन्यूड रहे और काफी और ग्रोथ अचीव करे, सक्सेस अचीव करे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द launch tomorrow. It's a big achievement we are about to receive, and Sure. Stay tuned, and many more things are lined up. So it's gonna be exciting. This is just like कि मैंने स्टार्टिंग से लोग कमाए हैं, मैंने स्टार्टिंग से रिश्ते कमाए हैं, तो वो रिश्ते आज भी मुझे जब ये पता चलता है ना कि आज से लगभग इतने साल पहले वो पर्सन था, उसके उसमें ये मतलब ओवरऑल चीजें अभी तक भी पलट के जब जितने भी हमारे इवेंट हुए हैं ना, तो बीइंग अ को होस्ट आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी रिलेटेड चीज में समन के साथ पहले से जुड़ा हुआ ही मिला है। वो शायद किसी इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनर रहा हो, इन टर्म्स ऑफ कोऑथर रहा हो, इन टर्म्स ऑफ कंपाइलर, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट है। तो ये रिश्ते कमाए हैं, ये रिश्ते निभाए हैं, ये रिश्ते दोनों साइड से चले हैं। तो मैं इसी चीज को लेकर काफी प्राउड फील करता हूँ कि मेरे जो लोग मैंने कमाए हैं, जो सालों की चीजें हैं, जो सालों से रिश्ते बनाए हैं, वो आज भी चल रहे हैं। तो आई एम जेन्युइनली हैविंग प्राउड फीलिंग टू हैव सच पीपल्स अराउंड मी। So thank you so much. Family is always there. You made everyone the family, and family is always gonna be there. Yes. So I guess on that note we can wrap the session, Yeah. and let's meet tomorrow on the big launch. On the big launch. So this is Sachin Monodia and Ocean Singh signing off from the grand finale. See you soon, very soon in the frame, but we'll join you tomorrow on the launch event. So thank you so much, everyone. Goodbye. Thank you. Goodbye. Good night, and stay tuned with Saman Publication. Hi.